Hello students, welcome to my new video. In this video, we are learning about the third lesson of history, the Delhi Sultanate. So, you should take your SST textbook and open your page number 26. Okay. This video is the part 2 of this lesson. So, what we have seen there in the previous video, there are some words and their meanings. And we have understood the meanings of these words there. Okay. So you should write the words and meanings in your notebook also before the question and answers of this lesson. Then after this words, we have seen about the 5 dynasties, and these dynasties ruled in later medieval period. Okay, what is meant by dynasty? Dynasty means ruler from same family, the series of rulers from same family, that is called the dynasty. Okay, Rajgharana, Rajvansh. And which were the dynasties during the later medieval period? First was the slave dynasty, then Khilji dynasty, then Tughlaq, then Said dynasty, then Lodi dynasty. Okay, we have seen total information about these dynasties in previous video. Okay, now next topic was the sources for the Sultanate period. You know sources, what is meant by sources? Some objects, some records gives us the information about the past, about the history. That objects, that written records are called the sources. Okay, and there are many sources are available for information about the Delhi Sultanate. Okay, Sultanate period. Then we have solved 2 MCQs also on page number 27. Then we have seen about the slave dynasty, and there were some rulers in slave dynasty. First was the Qutbuddin Aibak. We have seen detailed information about this Qutbuddin Aibak in the first video. Then we have seen about the Shamsuddin Iltutmish. Okay. Then we have seen about the Razia Sultan also. Then period from 1240 to 1266, and during this period there were Nazir Uddin Muhammad was the ruler. Okay, then after this period from 1240 to 1266, there were Ghiyazuddin Balban was ruler. Okay, which was the period of this ruler? 1266 to 1287. Okay, and he was a most powerful ruler from the slave dynasty. Got it? Then there is next topic, qualities for becoming a sultan. And now in this video we have to see about the qualities for becoming a sultan. Okay, now in this video we will see the qualities for becoming a sultan. Okay, हमें यहाँ पे सुल्तान बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए इसके बारे में पढ़ना है. द सुल्तान वॉज सपोज्ड टू हैव सम यूनिक क्वालिटीज़. ही हैड टू बी अ स्ट्रॉन्ग मिलिटरी जनरल विथ एम्बिशन and expansionist policies. इन ए स्ट्रॉन्ग मिलिटरी जनरल बनना पड़ता था. ओके, फॉर दिस ही हैड टू बी अ वेल वर्स्ड इन द स्किल्स ऑफ वॉरफेयर. जो भी वॉरफेयर स्किल्स थे ये इन्हें आने ज़रूरी थे. एंड मिलिटरी डिज़ाइंस ऑल्सो. ओके, बिसाइड्स द रूल्स लेड डाउन फॉर सक्सेशन और द कन्वेंशन फॉलोड. एंड रूल्स के साथ यहाँ पे कन्वेंशन भी फॉलो करने थे. कन्वेंशन मीन्स समझौता. मीन्स अगर कोई एडवाइज़र मीन्स कोई नोबल एडवाइस देते हैं तो ये सुल्तान को सुनना ज़रूरी था और कुछ हद तक ये फॉलो भी करना ज़रूरी था. ओके,
only a strong individual who gained support from nobles, military and ulemas was successful as a sultan. और अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सन है और उन्हें नोबल्स का सपोर्ट है, नोबल्स मीन्स पावरफुल पर्सन्स फ्रॉम किंगडम, ओके, जो ग्रेट पर्सन्स रहते थे, पावरफुल पर्सन्स रहते थे, उन्हें नोबल्स कहा जाता था. ये नोबल्स जनरली रूलर्स के रिलेटिव्स रहते थे. ओके, मिलिटरी एंड उलेमाज मीन्स प्रीस्ट, और ये जो भी पावरफुल पर्सन्स यहाँ पे रहते थे उसके साथ आर्मी, इस इन सभी का सपोर्ट होना ज़रूरी था. जो भी पर्सन्स था स्ट्रॉन्ग पर्सन, तभी वो सक्सेसफुल सुल्तान बन पाता था. ओके, रज़िया वॉज एबल बट वॉज किल्ड ड्यू टू द treacherous designs of the nobles who could not tolerate a women's rule. And there were रज़िया वॉज एबल, रज़िया सुल्तान जो थी, इनके पास पूरी क्वालिटीज़ थी एक सुल्तान को जो चाहिए वो, बट जो नोबल्स थे इनका सपोर्ट नहीं था. वो लेडी होने की वजह से नोबल्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया एंड इसीलिए ये मारी गई. ओके, बट बालबन रोज टू पावर बाय कंट्रोलिंग ऑल दीज फैक्टर्स. बट आफ्टर रज़िया देयर वर बालबन कंट्रोलिंग ऑल दीज फैक्टर्स. जो भी फैक्टर्स चाहिए सुल्तान बनने के लिए, ये सभी फैक्टर्स बालबन ने कंट्रोल किए. मीन्स रज़िया का कौन सा फैक्टर मिस हुआ था कि उन्हें नोबल्स का सपोर्ट नहीं था. यहाँ पे बालबन ने नोबल्स का भी सपोर्ट हासिल किया था. ओके, एट द टाइम ऑफ सक्सेशन देयर वाज जनरल अनरेस्ट विद द मोटिव टू ऑक्यूपाई द थ्रोन. एंड ये जो पीरियड था सक्सेशन का, यहाँ पे डिस्टर्ब जो भी लोग थे, पीपल थे, ये डिस्टर्ब थे पूरे. ओके, डिस्टर्बेंस था वहाँ पे. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनरेस्ट एंड पब्लिक अप्रोवर द आर्मी प्लेड अ की रोल इन द कंट्रोलिंग द पीपल एंड क्रशिंग द रिबेलियंस. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जहाँ पे सभी लोग डिस्टर्ब थे, उस पीरियड में आर्मी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. आर्मी प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द पीपल. लोगों को कंट्रोल किया. ओके, एंड क्रशिंग द रिबेलियंस. जो भी रिबेलियंस वहाँ पे हो रहे थे, जो रिवॉल्ट्स वहाँ पे हो रहे थे, रिबेलियंस मीन्स रूलर्स के अगेंस्ट जाना. ओके, क्रांति. तो ये सभी रिबेलियंस यहाँ पे क्रश किए गए बाय आर्मी. ओके, दे चेक्ड द इन्वेंशन एंड अटैक्स. और आर्मी ने यहाँ पे जो इन्वेंशन वहाँ पे हो रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, ये पूरे चेक कर दिए. चेक मीन्स रोक दिए गए, स्टॉप किए. चेक मीन्स स्टॉप करना. आफ्टर बाबर, जलालुद्दीन who was an army officer founded a new dynasty of the Khilji. And after Balban there were Jalaluddin also who was the army officer, और इन्होंने न्यू डिनेस्टी फाउंड की, डिनेस्टी ऑफ द खिलजी. ओके, तारीखी फिरोज शाही, द हिस्ट्री ऑफ फिरोज शाह is the work of Ziauddin Barani that gives a detailed descriptions of the Jalaluddin and the rulers who followed him. Now there are MCQs. First, which of the following is the true about the Kutubuddin Aibak? There are three options. A, founder of the slave or Mamluk dynasty. Then B, called a Lakh Baksh. Then C, both A and B. C option is answer here. Okay, both A and B. Then second, who was the most powerful ruler of the slave dynasty? There are again three options. A, Razia Sultan. B, Balban. C, Muhammad Ghori. B option is answer here, Balban. Okay, 1 minute. Next, the Khilji dynasty. We have to study about this Khilji dynasty. After this slave dynasty there were
Khilji dynasty. The Khilji sultans ruled for 3 decades. And how many decades these Khilji sultans ruled there? 3 decades. And you know what is meant by decades? The period of 10 years. Okay. They followed very ambitious expansionist policies, but they were good administrators too, and consolidated the huge empire and also expanded the field of economics and market control policies. एंड ये जो खिलजी डिनेस्टी के रूलर्स थे, सुल्तान्स थे, ये बहुत ही एम्बिशियस एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज फॉलो करते थे. ओके. एंड ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे. एंड इन्होंने बहुत ही बड़ा ह्यूज एम्पायर कंस्ट्रक्ट किया एंड एक्सपांड किया. ओके. एंड इन्होंने जो इकोनॉमिक एंड मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज थी, ये पॉलिसीज भी यहाँ पे एक्सपांड की. ओके. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी. Jalaluddin was not a strong ruler, and this Jalaluddin Firoj Khilji was the first ruler from the Khilji dynasty, which was the period of this ruler Jalaluddin 1290 to 1296. and ये जलालुद्दीन ज़्यादा strong ruler नहीं था. He was not powerful. He was tolerant and avoided harsh punishments. और ये tolerant था, समझदार था. ओके. और ये हर्ष पनिशमेंट अवॉइड करता था, यानी किसी ने कुछ गलती की है तो उसे हार्श पनिशमेंट नहीं देता था. ही हैड अ lenient पॉलिसी टुवर्ड्स द मुगल्स. ही इवन मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर्स टू उलुग खान, द मोंगल लीडर. एंड इन्होंने जो मोंगल लीडर थे उलुग खान, इनकी डॉटर के साथ मैरिज भी किया. ड्यूरिंग हिज रिंग द नोबल्स एंजॉयड अ पावरफुल रोल. और ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इनके पीरियड में जो नोबल्स थे ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे. दे हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी एंड फाइनली किल्ड हिम. एंड आफ्टर हिज डेथ हिज nephews Ali Gurshab succeeded him and was given the title Alauddin. एंड उनके जो नोबल्स थे उन्होंने साजिश करके जलालुद्दीन को मार दिया. कॉन्स्पिरेंसी मीन्स साजिश करना. ओके. आफ्टर हिज डेथ हिज nephew Ali Gurshad succeeded him and was given the title Alauddin. एंड इनकी डेथ के बाद उनके नेप्यू अली गुरशद सुल्तान बन गए एंड इन्हें अलाउद्दीन टाइटल दे दिया गया. अलाउद्दीन खिलजी, विच वॉज द पीरियड ऑफ दिस अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316. अलाउद्दीन खिलजी वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डिनेस्टी. और ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये बहुत ही पावरफुल रूलर थे वो पीरियड के. ओके. He was the first Turkish sultan to build an imperial empire in India that gained name and fame and touched a height like never before. और इनका जो भी रिंग्स था, जो भी पीरियड था, ये बहुत ही पावरफुल पीरियड माना जाता है. उनका जो भी एम्पायर था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका था. इसके पहले ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. ओके. इतने ऊंचाई पे ये नहीं पहुंचा था. ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली सल्तनत बियॉन्ड द विंध्यज अप टू द दक्कन. एंड इन्होंने अपने जो दिल्ली सल्तनत की बाउंड्रीज थी ये विंध्य से लेके दक्कन तक पहुंचा दी थी. ही इज़ फेमस इन हिस्ट्री फॉर हिज दक्कन पॉलिसी. Alauddin was a brilliant general and a very capable administrator as well. और ये जो अलाउद्दीन थे ये बहुत ही ब्रिलियंट जनरल थे एंड बहुत ही कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे. दो himself quite illiterate
और ये जो अलाउद्दीन थे ये इलिटरेट थे। अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और ये ग्रेट पैट्रॉन्स थे आर्ट एंड लिटरेचर के। पैट्रॉन्स मीन्स फेवर में रहना, ओके, फेवर में रहना, प्रोटेक्शन करना, मीन्स इन्हें क्या पसंद था, आर्ट एंड लिटरेचर, ओके। देयर वर मेनी ग्रेट पोएट्स एंड स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट, और इनके कोर्ट में बहुत सारे पोएट्स भी रहते थे और स्कॉलर्स पर्सन्स को भी ये पसंद करते थे। अमॉन्ग देम वर अमीर खुजराओ एंड शेख रुकुद्दीन, और उसमें से कौन से स्कॉलर्स दिए हैं, पोएट्स एंड स्कॉलर्स, अमीर खुजराओ एंड शेख रुकुद्दीन। एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर, Alauddin planned and executed his expansionist designs in a way that he stood to gain strategically and the economically. In the west, Alauddin conquered Gujarat and Malwa. वेस्ट में इन्होंने गुजरात एंड मालवा कैप्चर किया था। दिस गेव हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सी पोर्ट्स, इसकी वजह से इन्हें वेस्टर्न सी पोर्ट्स कंट्रोल हुए थे। ही ऑल्सो कॉन्क्यूर्ड रणथंभोर, चित्तौड़ एंड जैलोर इन राजस्थान, और इन्होंने राजस्थान के कुछ एरियाज पे भी कंट्रोल किया था। ड्यूरिंग द पीरियड 1301 to 1303 एंड ही कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ राजपूत्स, और राजपूत्स के फोर्ट्स भी इन्होंने कैप्चर्ड किए थे। नेक्स्ट ही लॉन्च्ड हिज फेमस एम्बिशियस कैंपेन्स इन द डेक्कन, और उन्होंने इसके बाद अपने जो कैंपेन्स थे ये डेक्कन पे लॉन्च किए थे। नन ऑफ द सुल्तान्स फ्रॉम दिल्ली सल्तनत हैड क्रॉस्ड विंध्य माउंटेन्स, और दिल्ली सल्तनत का कोई भी सुल्तान विंध्य माउंटेन्स क्रॉस करके नहीं गया था। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू डू सो, और ये पहले सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी की इन्होंने विंध्य माउंटेन्स भी क्रॉस किया था। फॉर दिस कैंपेन्स ही चूज हिज फेमस जनरल मलिक काफर, हु वॉज अ स्लेव कैप्चर्ड फ्रॉम गुजरात, एंड इन्होंने ये कैंपेन्स के लिए किसे चूज़ किया था, फेमस जनरल मलिक कैफर को, एंड ही वॉज द स्लेव थे ये, स्लेव मीन्स गुलाम। कहाँ से कैप्चर किया था इन्हें, गुजरात से। मलिक कैफर डिफीटेड द यादवास ऑफ देवगिरी एंड द काकतियास ऑफ वारंगल इन हिज अर्ली कैंपेन्स, और उन्होंने पहले कैंपेन्स में यादवास को, देवगिरी के यादवास को हराया था, एंड काकतियास वारंगल के काकतियास को हरा दिया था। इन 1310 ही ऑल्सो डिफीटेड द होयसालाज एंड द पांड्याज, और 1310 में इन्होंने होयसाला एंड पांड्याज को भी हरा दिया था। ओके, और नेक्स्ट पेज नंबर 30, ही carried away a lot of war booty from the vanquished kingdom, एंड इन्होंने बहुत सारी बूटी मीन्स लूट, जो वहाँ पे वॉर होती थी, अटैक किए जाते थे, उसमें कुछ लूटा जाता था, दैट वॉज कॉल्ड द बूटी। ओके, बहुत सारा कुछ लूट के इन्होंने लाया था फ्रॉम vanquished kingdoms. According to the accounts of Barani, Alauddin welcomed Malik Kafur at the Hall of Thousands Pillars at Siri Fort in Delhi when he returned from the Deccan with 612 elephants, 20,000 horses, a large amount of gold and a chest of jewels. और ये जो मलिक कैफर थे इनका अलाउद्दीन ने वेलकम किया था, और ये वेलकम के बारे में बारानी ने कुछ लिखा हुआ है। कहाँ पे इनका वेलकम हुआ था, जो हॉल था थाउजेंड्स ऑफ पिलर का, सिरी फोर्ट दिल्ली का, यहाँ पे वेलकम किया था मलिक कैफर का। इन्होंने 612 एलिफेंट्स लाए थे, 20,000 हॉर्सेस लाए थे,
एंड बहुत सारा गोल्ड लाया था और बहुत सारे ऑर्नामेंट ज्वेल्स लाए थे. ओके. The defeated kings were allowed to continue as rulers. एंड जो डिफीटेड किंग्स थे, जो हारे हुए किंग्स रूलर्स थे, उन्हें कंटिन्यू एज अ रूलर्स रखा गया था. दे एक्सेप्टेड हिज सुजर्निटी एंड पेड ट्रिब्यूट्स टू अलाउद्दीन. These defeated kings, rulers, accepted his superiority and they paid tributes also. Tributes means like a tax. It was like a tax, one amount, and ये अमाउंट इन्हें अलाउद्दीन को पे करना पड़ता था. ओके. टुवर्ड्स द एंड ऑफ अलाउद्दीन्स रिंग्स, द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर could be compared to that of किंग अशोका. और इनका जो एम्पायर था एंड में, इसका कंपैरिजन हम अशोका किंग के एम्पायर से कर सकते हैं. ओके. रिफॉर्म्स द आर्मी. नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, रिफॉर्म्स द आर्मी. अलाउद्दीन खिलजी हैड अ वेल इक्विप्ड, ट्रेन, डिसिप्लिन एंड मोटिवेटेड आर्मी. एंड ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनकी वेल इक्विप्ड आर्मी थी. वेल इक्विप्ड मीन्स जो भी वेपन्स, जो भी चीज़ें चाहिए, ये सभी वहाँ पे आर्मी में थी. दैट इज़ कॉल्ड द वेल इक्विप्ड. ट्रेन, जो भी सोल्जर्स, एनिमल्स, ये सभी ट्रेंड थे वहाँ पे. डिसिप्लिन एंड मोटिवेटेड आर्मी. ओके. ही हैड अ स्ट्रॉन्ग विजिलेंस सेल टू कीप अ वॉच ऑन द एक्टिविटीज़. एंड ये बहुत ही अलर्ट थे आर्मी के बारे में. ओके. विजिलेंस मीन्स अलर्ट, सावधानी इन हिंदी, दक्षता. ओके. तो आर्मी के बारे में ये बहुत ही अलर्ट रहते थे. सभी एक्टिविटीज़ के, जो भी सोल्जर्स थे, उनके एक्टिविटीज़ पे पूरा इनका वॉच था. ओके. द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी वॉज स्टूपेंडस. स्टूपेंडस मीन्स लार्ज, इम्प्रेसिव. उनकी जो आर्मी थी, ये बहुत ही इम्प्रेसिव थी. ओके. हिज आर्मी हैड मोर दैन 4,75,000 हॉर्समैन्स. एंड इनके आर्मी में 4,75,000 हॉर्समैन्स थे. द सैलरी ऑफ ईच हॉर्समैन वॉज फिक्स्ड एट 234 तंकाज अ ईयर. एंड ईयरली इनकी सैलरी, हॉर्समैन की सैलरी कितनी रहती थी? 234 तंकाज. तंकाज मीन्स सिल्वर कॉइन्स. ओके. But those horsemen who contributed their own 2 horses used to get 78 tankas in addition to their original pay. And अगर कोई हॉर्समैन अपने खुद के 2 horses वहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो उन्हें 78 तंकाज एडिशन में मिलती थी. मीन्स जो ओरिजिनल सैलरी थी उसमें और 78 तंकाज ऐड हो जाते थे. तंकाज मीन्स सिल्वर कॉइन्स. ओके. द सुल्तान पेड हैंडसम एंड रेगुलर सैलरी टू हिज सोल्जर्स. और ये जो सुल्तान थे, ये रेगुलर सैलरीज पेड करते थे अपने सोल्जर्स को. एंड बहुत ही अच्छी सैलरी पे होती थी वहाँ पे. ही मेड अरेंजमेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सोल्जर्स. और ये सोल्जर्स के लिए ट्रेनिंग भी अरेंज करते थे. दे वर वेल इक्विप्ड विथ आर्म्स एंड वेपन्स. यू नो वेपन्स, हथियार. ओके. Alauddin kept a close watch over their activities, and for this he had special spies who kept the Sultan informed about each and every development. And Alauddin, ये जो सुल्तान थे, ये बहुत ही क्लोज वॉच रखते थे सोल्जर्स के एक्टिविटीज़ पे. इसके लिए इनके पास कुछ जासूस थे. ये सीक्रेटली वॉच करते थे सोल्जर्स पे. ओके. स्पाइज मीन्स सीक्रेटली वॉच, जासूस. एंड ये जो वहाँ पे जासूस थे, डिटेक्टिव बोलेंगे हम इसे, ये डिटेक्टिव उन्हें इंफॉर्मेशन देते थे. जो भी डेवलपमेंट वहाँ पे होता था उसके बारे में इंफॉर्मेशन सुल्तान को मिल जाती थी. द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्सेस दाग was also introduced, and there were branding the horses. This system
was also introduced so that no one could trick the sultan or cheat him. और ये जो ब्रांडिंग द हॉर्सेस सिस्टम इंट्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे कोई भी सुल्तान के साथ चीटिंग नहीं कर सकता था. ओके. अ फुल ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच सोल्जर्स वाज आल्सो मेंटेन्ड. दिस वाज कॉल्ड चेहरा. और हर एक सोल्जर की हर एक सोल्जर का जो फुल डिस्क्रिप्शन था ये भी यहाँ पे मेंटेन होता था. दैट वाज कॉल्ड द चेहरा. ओके. Then next topic is here economic measures of Alauddin Khilji. Mongol invasion and internal revolts increased the cost of maintaining a large army. And there were Mongol invasion. Invasion means attack. And internal revolts also. Revolts means रूलर्स के अगेंस्ट जाना, क्रांति. ओके. ये सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी थी. अलाउद्दीन खिलजी's main concern was to take his soldiers live and survive. और ये जो सुल्तान थे इनका मेन कॉन्सर्न था उनके सोल्जर्स. ओके. Alauddin Khilji gave orders to measure all the land which was under cultivation. एंड अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे ऑर्डर निकाली थी कि जो भी लैंड कल्टीवेशन के अंडर में है ये मेजर की जाए. एंड लैंड वाज डिवाइडेड एंड लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी. लैंड डिवाइड कर दी गई एंड वहाँ पे जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू मीन्स टैक्स, फिक्स कर दिया गया अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी. ओके. Alauddin increased the tax on the farmers of the Doab. एंड अलाउद्दीन ने जो एरिया था गंगा एंड यमुना रिवर्स के बीच में जो भी फर्टाइल लैंड थी, यहाँ के जो भी फार्मर्स थे इन पे इनका जो टैक्स था, रेवेन्यू था, ये इंक्रीज़ कर दिया. हाउ मच टैक्स इट वाज? टू हाफ द प्रोड्यूस. जो भी प्रोड्यूस वहाँ पे होता था हाफ प्रोड्यूस रूलर को देना पड़ता था. बट एट द सेम टाइम ही मेड श्योर दैट द नोबल्स डिड नॉट इम्पोज अदर टैक्स ऑन द पीसेंट्स. और वहीं पे उन्होंने ये भी फिक्स किया कि कोई भी नोबल दूसरा टैक्स न ले फार्मर्स से. ओके. दूसरा टैक्स उन पे न लगाए. He also began the audit of the accounts of his officers. एंड उन्होंने यहाँ पे ऑडिट भी स्टार्ट कर दिया गया. ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन. ओके. कि कुछ गलत हो रहा है क्या, इसके लिए कुछ ऑडिट रखा जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑडिट. ओके. एग्जामिनेशन. Alauddin Khilji fixed prices for articles of food and enforced them rigorously. And अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे जो फूड आर्टिकल्स थे इनकी प्राइस फिक्स कर दी गई. ओके. रिगरसली मीन्स स्ट्रिक्टली. ओके. ही बिल्ट वास्ट स्टोर्स ऑफ ग्रेन्स इन दिल्ली. और उन्होंने स्टोर्स हाउसेस ग्रेन्स के लिए बिल्ड किए इन दिल्ली. In these stores grains were stored and sold at retail prices. और ये जो हाउसेस थे स्टोर हाउसेस, यहाँ पे ग्रेन्स स्टोर किए जाते थे और ये रिटेल प्राइसेस में सोल्ड होते थे. ओके. बेचे जाते थे. एवरीथिंग फ्रॉम ग्रॉसरी आइटम्स टू फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स टू हॉर्सेस, स्लीव्स, कैप्स, शूज़, कॉम्स एंड इवन नीडल्स वॉज प्राइज्ड. और हर एक जो आइटम्स थे ग्रॉसरी आइटम्स इसे प्राइस लगा दी गई. ओके. दिस इज़ नोन एज हिज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. और इसे ही क्या कहा जाता है? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. He introduced a subsidized rationing system, especially in times of scarcity. एंड इन्होंने सब्सिडाइज rationing सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था, स्पेशली ड्यूरिंग द शॉर्टेज. ओके. जहाँ पे ग्रेन शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज होता था, ये पीरियड में सब्सिडाइज्ड rationing सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था.
Subsidized means financial help. Okay. In times of scarcity, corn was sold to the citizens of Delhi at fixed rates. अगर शॉर्टेज होता है, ग्रेन का शॉर्टेज होता है, तो वहाँ पे कॉर्न फिक्स्ड रेट में दिल्ली के सिटीजन्स को बेचा जाता था. एंड नो बडी वॉज अलाउड टू बाय मोर देन हाफ अ माउंड ऑफ कॉर्न एट अ टाइम. और कोई भी हाफ माउंड के ऊपर कॉर्न खरीद नहीं सकते थे एक टाइम पे. ओके, एट ए टाइम. These measures were good, and even during the times of droughts, grains became so plentiful in Delhi and its surrounding areas that no shortage was felt. और इसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो मेजर्स यहाँ पे लिया गया था, मेजर्स मीन्स उपाय. ओके, तो ये जो मेजर्स यहाँ पे लिया गया था उसकी वजह से दिल्ली में फूड शॉर्टेज नहीं होता था. सभी को ग्रेन्स मिल रहे थे, एंड जो आजू बाजू की एरिया थी यहाँ पे भी शॉर्टेज नहीं होता था. दिस सिस्टम ensured दैट नो वन कुड hoard commodities और enjoy surplus when the poor went hungry. और ये जो सिस्टम था इसकी वजह से जहाँ पे शॉर्टेज होता है तो गरीब लोग, पुअर लोग भूखे रहते हैं, और अमीर लोगों के पास ग्रेन्स रहते हैं. ओके, जनरली ऐसे होता है शॉर्टेज में. लेकिन ये जो सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी उसकी वजह से सभी को ग्रेन्स मिल रहे थे, कोई भी भूखा नहीं रह रहा था. ओके. Alauddin Khilji set up a special department under the charge of शाहानी मंडी. और इन्होंने स्पेशल डिपार्टमेंट यहाँ पे रखा था, सेट किया था. ओके. It was his duty prepare the list of prices of various commodities. Commodities means यूज़फुल गुड्स, जो डेली नीड्स रहती है हमें लगती है, तो उसे हम बोलेंगे कॉमोडिटीज़. ओके. तो ये जो डिपार्टमेंट था इनकी ड्यूटी क्या थी कि लिस्ट प्रिपेयर करे, जो अलग अलग कॉमोडिटीज़ वहाँ पे थी उनके प्राइस की लिस्ट प्रिपेयर करे, एंड मर्चेंट्स को रजिस्टर्ड करे, एंड टू कीप एन आई ऑन देयर एक्टिविटीज़. और जो मर्चेंट्स थे इनके एक्टिविटीज़ पे नज़र रखे. दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द रॉयल गैनरी. और ये डिपार्टमेंट को जो रॉयल ग्रैनरी था, ओके, ग्रैनरी मीन्स स्टोर हाउस, तो ये भी देखना पड़ता था, ये भी संभालना पड़ता था. सुपरवाइजर द मार्केट, मार्केट का सुपरविजन करना पड़ता था. केप्ट कॉन्स्टेंट विजिल ऑन द वेट्स एंड मेजर्स. और जो भी वहाँ पे मर्चेंट्स, जो भी शॉपकीपर्स थे, ये कैसे वेट करते हैं, कैसे मेजर्स करते हैं, इस पे भी बारीक नज़र वहाँ पे रखी जाती थी. पनिशमेंट वर गिवन टू द शॉपकीपर्स इफ़ दे मेजर्ड लेस और कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स. अगर कोई भी शॉपकीपर्स यहाँ पे चीटिंग करता है, कुछ आर्टिकल्स की क्वालिटी वो गलत देता है, या मेजर कम करता है, यानी जो भी वेट रहता है तो वो कम वेट करके बेचता है, तो वहाँ पे ऐसे शॉपकीपर्स को पनिशमेंट दी जाती थी. The administrative, economic and military reforms of Alauddin clearly show that the Sultan was not only a military genius but also an efficient administrator. Okay, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स थे अलाउद्दीन खिलजी के. रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस, ओके, सुधारना. तो ये जो वहाँ पे रिफॉर्म्स किए गए थे, इससे ये पता चलता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान थे, ये सिर्फ मिलिट्री जीनियस ही नहीं थे, तो ये एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे. ओके. War of succession broke out after Alauddin's death, and Khusrau Malik was the last Khilji ruler. Ghiazuddin defeated him and started the Tughlaq dynasty. And after the death of Alauddin Khilji, there were Tughlaq dynasty. Okay, captured the Delhi Sultanate by Tughlaq dynasty. And today's topic is completed here. Okay, in next video we will see the next topic about the Tughlaq dynasty. Okay.
हैव अ गुड डे।